নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড, সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। নিউজ ঝাড়খণ্ড স্পন্সর্ড বাই সিটিএ এভিয়েশন অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট। জামশেদপুরে করোনা সংক্রমণের হার শনিবার দিন সবথেকে বেশি হয়েছে। এখনো পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে একদিনে 22 জনের সংক্রমণ হয়েছিল এবং বর্তমানে এই রেকর্ড পূর্ব সিংভূমের নামে হলো। শনিবার জেলায় একদিনে প্রায় 27 জন করোনা সংক্রমণ রোগীর হদিশ পাওয়া গেছে। এখনো পর্যন্ত জেলায় মোট 79 জন করোনা সংক্রমণ রোগীর হদিশ পাওয়া গেছে। রাঁচির পরে পূর্ব সিংভূম দ্বিতীয় স্থানে চলে এসেছে, যেখানে করোনা সংক্রমণ রোগী সব থেকে বেশি পাওয়া গেছে। গত 2 দিনের যদি কথা বলা যায়, তবে এই জেলায় মোট 52 জন সংক্রমণে ধরা পড়েছে, যা একটি রেকর্ড। জেলায় এভাবে সংক্রমণের হার বৃদ্ধিতে প্রশাসন খুবই চিন্তাজনক অবস্থায় রয়েছে। যেসব সংক্রমণ রোগী পাওয়া যাচ্ছে তাদের বেশিরভাগই প্রবাসী শ্রমিক, যাদের টাটা মেইন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মন্ত্রী বান্না গুপ্তা জামশেদপুর পরিষদনে জেলা প্রশাসক মানগঞ্জ নগর নিগম, জামশেদপুর নোটিফাইড এরিয়া কমিটি, যুগসেলাই নগরপালিকা, পানীয় জল ও স্বচ্ছতা বিভাগ এবং জুসকোর কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে জামশেদপুর পূর্বাঞ্চলে চলমান মোহরদা জল সরবরাহ প্রকল্প ছাড়াও মানগঞ্জ এবং যুগসেলাইয়ে কিভাবে পানীয় জলের সংকটের মোকাবেলা করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও আগামী দিনে জামশেদপুর পশ্চিম বিধানসভা আসনের আওতাধীন কদমা, সোনালী, মানগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের ড্রেনেজ সিস্টেম থেকে শুরু করে ড্রেন ও গলি ব্যবস্থার প্রশস্তকরণ ও নির্মাণ পরিষ্কারের বিষয়ে কর্মকর্তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। একই সঙ্গে মন্ত্রী জামশেদপুর পশ্চিমের অধীনে নির্মিত কমিউনিটি টয়লেট মেরামত করার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন। জামশেদপুর পশ্চিমের অধীনে যে সমস্ত কমিউনিটি বিল্ডিং রয়েছে সেগুলি দুস্থ মানুষের মেয়েদের বিবাহের জন্য সর্বনিম্ন হারে উপলব্ধ করানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়। একই সাথে মন্ত্রী বান্না গুপ্তা আশ্বাস দেন যে কমিউনিটি বিল্ডিং এ টাটা স্টিলের সহযোগিতায় মহিলা ও বিধবাদের পাশাপাশি বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য শিল্প উদ্যোগের কাজ শিগগিরই শুরু করা হবে। करने का उद्देश्य है कि बहुत सारी जो है समस्याएं हैं। एक तो आज हम लोगों ने चर्चा किया मोहरदा जल पेयजल योजना के संबंध में भी चर्चा किया। आदरणीय हमारे पूर्वी के विधायक सरयू राय जी भी बहुत इसको लेके चिंतित हैं। इस विषय को लेके भी हमने जिसको के लोगों को भी बुलाया था, पेयजल डिपार्टमेंट के लोगों को भी बुलाया था। उस पर भी चूँकि वहाँ पर 4 नाली ऐसी हैं जिस नाली का पानी जो है वो सीधे इंटकवेल को प्रभावित कर रहा है, तो उस पर भी चर्चा किया गया कि ताकि जो है आम लोगों को साफ सुथरा पानी उपलब्ध हो। इसके लिए भी हमारे माननीय विधायक सरयू राय जी भी चिंतित हैं, मैं भी खुद चिंतित हूँ। और लोगों को साफ सुथरा पानी मिले, ये सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता है। साथ में वहाँ इंटकवेल में कैसे करके बिजली विभाग डायरेक्ट जो है फीडर पहुँचा दे, इस पर भी बातचीत किया गया है। इसी के साथ साथ जुगसलाई से लेके मानगो, कदमा, सुनारी, आप जानते हैं कि बरसात आने वाली है। बरसात के पहले जितनी भी नालियां हैं वो नालियों को कैसे साफ सुथरा किया जाए, कैसे जगह जगह कचड़े उठाए जाएं और चिकनगुनिया, डेंगू आदि बीमारी के भी संभावनाएं हैं, तो उसको लेकर और अभी जो कोरोना का भी जो शिकायत आ रहा है, जो संख्या बढ़ रही है, तो उसको कैसे सैनिटाइज किया जाए, उसके लिए भी हमने जो है मानगो नगर निगम को भी, जुगसलाई नगर पालिका को, जेएनएससी को और जिसको प्रबंधन को बुलाया था कि अपने अपने इलाका में कैसे करके ये सैनिटाइज करके हम इसको कंट्रोल करें। জামশেদপুরের চতুর্থ লকডাউনের শেষ পর্বে সিংভূম চেম্বার অফ কমার্স শহরের ছোট ছোট দোকানদারদের সমস্যা নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী বান্না গুপ্তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের কাছে তাদের দোকান খোলার দাবি জানান। এই ব্যবসায়ীরা অনাহারে থাকার মতন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন। সিংভূম চেম্বার সদস্যরা কিছু নিয়মের আওতায় এই দোকানগুলি খোলার আবেদনে মন্ত্রী বান্না গুপ্তার সাথে দেখা করেন। देखिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आज
हम लोग सब मिले हैं दुकानदार लोग के साथ में कि लॉकडाउन पीरियड का बयान आया पेपर में कि फिर बढ़ने का विचार कर रही है झारखंड सरकार, तो उसको लेके छोटे दुकानदार सभी मरमाहत है। अब उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, तो यही रिक्वेस्ट लेके उनके पास आए थे स्वास्थ्य मंत्री कि सब छोटे छोटे जो व्यापारी हैं जो डेली कमाने खाने वाला है, कम से कम उन लोगों को खोलने का आदेश दे दिया जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी ने बहुत ही पेशेंस से हम लोग की बातों को सुना है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप सिम्बम चैम्बर की तरफ से तो लिख के दे दीजिए, मैं आपकी बातों को मुख्यमंत्री के समक्ष दूंगा और कोशिश करूंगा कि इस जो लॉकडाउन ये समाप्त हो रहा है उसमें ये दुकानें सब खुल जाए। বৈশ্বিক সংকটের এই মুহূর্তে একদিকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সাথে দুস্থ লোকেদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসছে, অন্যদিকে টাটা স্টিলের সহায়ক সংস্থা জুসকো শ্রমিকদের ইউনিয়ন নেতারা নিজেদের সহযোগিতায় ড্রাইভারদের প্রয়োজনীয় রেশন বিতরণ করেন। একই সাথে জুসকো শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি রঘুনাথ পান্ডে জানিয়েছেন যে 50-এরও বেশি চালককে রেশন সরবরাহ করা হয় এবং যা অব্যাহত থাকবে। सभी लोग चालक वर्ग हैं जो गाड़ी चलाते हैं और अभी गाड़ियां बंद हो गई है, रोड पर गाड़ी तो दिखाई दे नहीं रहा है, इसलिए ये लोग बेकार हैं अभी के टाइम में, क्योंकि करीब 65 दिन से ऊपर हो गया, 66-67 दिन हो गया, 67 दिन लॉकडाउन का, और इनकी स्थिति आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। तो हम लोगों ने काफ़ी जगह हम लोगों ने अन्न वितरण किया है और आज भी जो है सो ड्राइवर वर्ग ही हैं, इन्हीं को अन्न वितरण कर रहे हैं कि वो परिवार के साथ कम से कम, क्योंकि ये लोग मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा से काम किए हैं, जिए हैं, इसलिए मान सम्मान के साथ इनको हम लोग अपनी तरफ से चावल दाल और तेल वगैरह जो है सो। জামশেদপুরের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাগবেড়া গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্পের বিষয়ে জনপ্রতিনিধিরা এখন সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে, যেখানে বাগবেড়ার পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা তাদের বাড়িতে সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করে একদিনব্যাপী অনশনে ছিলেন। এছাড়া তারা সতর্ক করে বলেন যে সরকার যদি এখনো সতর্ক না হয় তবে আগামী দিনগুলিতে তীব্র আন্দোলন করা হবে। জানানো হচ্ছে যে এই প্রকল্প থেকে 50,000-এরও বেশি লোককে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হবে, তবে 4 বছরেরও বেশি সময় ধরে এই প্রকল্পটি অসম্পূর্ণ পড়ে রয়েছে, যেখানে প্রচন্ড গরমের কারণে জনপ্রতিনিধিদের ট্যাঙ্কার দ্বারা জল সরবরাহ করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने आवास पर एक दिन का उपवास रखे हैं, क्योंकि जलापूर्ति योजना 3-4 साल हो गया अभी तक चालू नहीं हुआ और यहाँ पर भीषण गर्मी के चलते हम लोग को बागबेड़ा क्षेत्र में पानी की बहुत सी किल्लत है। टैंकर के द्वारा हम लोग पानी का सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन टैंकर के द्वारा पानी पूरा उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसीलिए हम लोग जो काम जो रुका हुआ है पाइपलाइन का, जो बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का जो काम रुका हुआ है उसको जल्द से जल्द चालू करने के लिए आज हम लोग पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने आवास पर एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। बागबेड़ा WTP ग्रामीण जलपूर्ति योजना के तहत हम पंचायत जनप्रतिनिधि सभी सोशल डिस्टेंस करते हुए अपने अपने आवास में एक दिवसीय भूख हड़ताल किए हैं। বিশ্বব্যাপী এই করোনা সংকটের কারণে পুরো বিশ্বের পাশাপাশি দেশেও বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও ঝাড়খণ্ডের বেসরকারি বিদ্যালয়ের স্বেচ্ছাচারিতায় জর্জরিত। আজ ভারতীয় জনতা পার্টির যুব ইউনিট জেলা সদরে পৌঁছে তারা জেলা প্রশাসকের কাছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নামে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। এদিকে জমা দেওয়া স্মারকলিপির মাধ্যমে তারা বলেন যে বেসরকারি বিদ্যালয়ের স্বেচ্ছাচারিতা রোধে অবিলম্বে অধ্যাদেশ জারি করে সরকারের উচিত একটি কঠোর আইন তৈরি করা। একই সঙ্গে তারা সতর্কতা জারি করে বলেন যে যদি তাদের এই দাবি সরকার অথবা বেসরকারি স্কুল প্রবন্ধন না মানে তবে আগামী দিনে তীব্র আন্দোলন করা হবে। भारतीय जनता पार्टी के युवा सिपाही राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के नाम जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला जी को हम लोग एक मांग पत्र, अनुरोध पत्र और दर्द भरा पत्र सौंपने आए हैं एक सूत्री मांग को लेकर कि जिस तरह से आज लॉकडाउन में पूरे झारखंड के लोग त्राही माम कर रहे हैं, सारा आर्थिक स्रोत उनका आज ठप हो चुका है। ऐसे पीरियड में मुख्यमंत्री जी मानवता का धर्म निभाते हुए और एक अपना बड़ा व्यक्तित्व का धर्म निभाते हुए अभिलंब कानून बनाकर और अध्यादेश को लाकर झारखंड की जनता को इस अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के जबरन फीस वसूली से आप राहत देने का काम करें। আজ হিন্দি সাংবাদিকতা দিবস। এই অবসরে নরেন্দ্র মোদী ফ্যান ক্লাব কর্তৃক এই শহরে সাংবাদিকদের সম্মানিত করা হয়।
নরেন্দ্র মোদী ফ্যান ক্লাবের সভাপতি সতীশ শর্মা এই সম্মান দিয়েছেন। অন্যদিকে নরেন্দ্র মোদী ফ্যান ক্লাব বলেছেন যে করোনার মতো বিশ্বব্যাপী মহামারীতে চিকিৎসক, পুলিশ কর্মী এবং সাফাই কর্মীদের যতটা দায়িত্ব রয়েছে ততটাই দায়িত্ব সাংবাদিকদেরও রয়েছে। সাংবাদিকরা সেই সমস্ত জায়গায় পৌঁছে যায় যেখানে কেউ পৌঁছাতে পারে না এবং সংবাদ সংকলন করেন এবং সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে হিন্দি সাংবাদিকতা দিবস উপলক্ষে সাংবাদিকদের সম্মানিত করে নরেন্দ্র মোদী ফ্যান ক্লাব দায়িত্ব পালন করেন। आज चूँकि हिंदी पत्रकारिता दिवस है और हमारे मोदी सरकार पार्ट 2 का आज 1 साल पूरा हुआ है, इस उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी फैंस क्लब के द्वारा हम लोगों ने सोचा कि पिछले 2.5 महीनों से जिस प्रकार से इस वैश्विक महामारी में हमारे जितने भी कोरोना वायरस हैं, जैसे डॉक्टर, सिस्टर, पुलिसकर्मी, उसी प्रकार हमारे पत्रकार बंधुओं का भी इस बीमारी में बहुत अहम रोल रहा है और इस संकट में अपनी जान जोखिम में डालकर जिस प्रकार हमारे पत्रकार बंधुओं ने हमारे शहर के खबरों तक हमें पहुंचाने का काम किया है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज उन्हें उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा सम्मान उनको हम लोगों ने दिया है। संस्था है नरेंद्र मोदी फैंस क्लब। জামশেদপুরে করোনার রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, যেখানে বর্তমানে জেলায় রোগীর সংখ্যা 52 ছাড়িয়েছে। ইতিমধ্যে শহরের মানগঞ্জ, জওহরনগর, দ্বিতীয়টি 8 নম্বর বিশালনগর জোন এবং তৃতীয়টি টেলকো, এই 3টি অঞ্চলকে কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই অঞ্চলে করোনার রোগীর সংখ্যা 10-এরও বেশি। অন্যদিকে জেলা প্রশাসন দ্বারা এই 3টি অঞ্চলকে সিল করে দেওয়া হয়েছে এবং মানুষকে বাড়ি থেকে বেরোনোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। একই সাথে এই অঞ্চলগুলিতে ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে এবং লোকজনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তাদের যদি খাদ্য সামগ্রীর প্রয়োজন হয় তবে কন্টেনমেন্ট জোন এবং প্রশাসনের দেওয়া হেল্পলাইন নম্বরে জেলা প্রশাসনকে অবহিত করতে এবং প্রশাসন তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করবে। রোগীর সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে প্রশাসন পুরো জেলায় যানবাহন চেকিং ও কড়াকড়ি করা হয়েছে। বর্তমানে সমস্ত করোনার রোগীর টিএমএইচ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। इसका एक लेडीज थी, वो पहले 20 तारीख को बिहार से आए थे, इसके बाद हम क्वारंटाइन में थे और इसके बाद कल परसों जांच होने के पुनः जांच होने के बाद पॉजिटिव निकल गया तो इसके बाद हम लोग अभी यहाँ ये बना लिए हैं, कंटेनमेंट जोन बना लिए हैं। DCSP अपने आके देख लिए हैं। सूचना तो केस जो है लड़के का पॉजिटिव निकल गया है और इसी पास में ही घर है उसका, उस एरिया को हम लोग सील कर दिए हैं और उसमें बाकी जो आवश्यक है उनका परिवार का, उनका भाई जो एक आते जाते थे उनको अभी जांच के लिए भेजा गया है। बाकी इनके परिवार में यहाँ पर उनकी माँ और उनका भाई और उनका भतीजा 2 है बच्चा, इन लोग को हम लोग अभी भेजेंगे जांच के लिए। है बारीनगर, इसको बारीनगर टेल्को, थाना टेल्को। ধানবাদ পুলিশ দুলু মাহাতোকে একদিনের রিমান্ডে নিয়েছে। এই বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে অনেক অপরাধিক মামলা রয়েছে, যার মধ্যে অধিকাংশ মামলায় তাকে জামিন দেওয়া হয়েছে। রাজীব কুমার নামে এক ব্যক্তি দুলু মাহাতোর বিরুদ্ধে ধানবাদের বড়রা থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেন, যাতে তিনি অভিযোগ করেন যে দুলু মাহাতোর লোকেরা তার জমি দখল করে এবং যখন সে প্রতিবাদ করে তখন তাকে পিস্তল দেখিয়ে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হয়। এই মামলায় ধানবাদ পুলিশ কোর্টে আবেদন দিয়ে দুলু মাহাতোকে রিমান্ডে নেওয়ার আগ্রহ করেছে। বারমাসিয়া রেলওয়ে ইয়ার্ডে পূর্ব মধ্য রেলওয়ের অধীনে আউটসোর্সিং এ কর্মরত সাফাই কর্মীরা ধানবাদ বিধায়ক রাজ সিনহার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং এই লোকেরা তাদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করেন। পরে বিধায়ক রাজ সিনহা জানিয়েছেন যে রেলওয়ে আউটসোর্সিং এর আওতায় কাজ করা সুইপারদের এই লকডাউনের ছাঁটাই বরদাস্ত করা হবে না। তিনি ডিআরএম সহ জেলার একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছেন এবং শ্রমিকদের ছাঁটাই এবং বকেয়া বেতনের নিষ্পত্তি নিয়ে কথা বলেন। তিনি আরো বলেন যে বাইরে থেকে আগত ধানবাদে কর্মরত সংস্থার ম্যানেজারকে সময় মতো সতর্ক হওয়া উচিত। क्या मामला किस लिए आए हैं बंटी? ये सब लोग सफाई कर्मचारी हैं और यहाँ के कोचिंग यार्ड में सफाई का काम करते हैं। कोई आउटसोर्सिंग कंपनी है पटना की, वो इनसे काम कराती है, लेकिन इन लोग का शिकायत है कि किसी का, वो महिलाएं देखिए केंदुआ से पैदल आई हैं, केंदुआ से इस धूप में भी पैदल आ रही हैं। किसी का 2 महीना, किसी का 3 महीना से पैसा नहीं दिया उन लोग,
और सारा सफाई काम कराया, बल्कि अभी बता रहे थे कि रेलवे का जो आइसोलेशन वार्ड बना उसमें भी सफाई ये लोग करते थे। और इन लोग को इस लॉकडाउन में इन लोग को नौकरी से बिठा दिया गया है। यह घोर अन्याय है, घोर अन्याय। और इसका जिस हद तक मैं विरोध करना होगा मैं करूँगा। मैंने अभी उपायुक्त महोदय से बात किया है, उन्होंने कहा कि आप मेरे पास इनका एक रिप्रेजेंटेशन भिजवा दीजिए और हम सबका वो डीआरएम से बात करेंगे। नहीं अगर उन लोगों को रखेगा, नहीं पेमेंट करेगा तो उन पर एफआईआर करेंगे। किस लिए आप लोग विधायक जी के पास आवास में आए हैं आज? रेलवे में आउटसोर्सिंग में काम करते हैं हम लोग। रेलवे में उर्मिला एंटरप्राइजेस कंपनी है, उर्मिला इंटरनेशनल लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है हम लोग का, उसमें सफाई का काम सब करते हैं हम लोग। और हमको पास बना के भी दिया था लॉकडाउन में काम करने को। उसके बाद भी कंपनी वाले लोग कहता है कि इसको 1 मार्च को कंपनी निकाल दी गई है। धनसार थाना में लिखित दिया गया कि ये लोग मारपीट, गाली गलौज ये सब करता हमारे लोग साथ में, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि अगर उनके साथ कोई गलत व्यवहार होता तो वो रेल को लिखित देते हैं, उनका अपना साहब को, सीडीओ को, फोरमैन को लिखित देते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट धनसार थाना को लिखित दिए। एक तिवारी हैं, उनका जांच का विषय बना। हम लोग धनसार थाना में गए, पूछे भी उनसे, और हम लोग साथ में सब लाठी चार्ज किया। ऐसा नहीं, वो डायरेक्ट बोला कि काम करने नहीं, सब मारपीट करने के लिए आया। और लाठी चार्ज उन्हें धनसार थाना वाले ले गए। हम लोग सब वहाँ गए, हम लोग सब, और वो पूछताछ हुआ, पेमेंट भी नहीं दिया, वो सारा का जांच हुआ। उसके बाद भी हम लोग कोई का अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा। ধানবাদে শনিবার সদর থানা এলাকার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে এক গর্ভবতী মহিলার মৃত্যু হয়। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন যে বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনা সংক্রমণ রোধ করতে লকডাউনের কারণে তারা তাদের পুত্রবধূ পূজা কুমারীকে পিএমসিএইচ এ নিয়ে যেতে পারেননি। সদর থানা এলাকার হিল কলোনির বাসিন্দা পূজা কুমারী প্রায় 8 মাস ধরে গর্ভাবস্থায় ছিল। এই সময় তার হাত পা ফোলে। এরপরে তারা কাছের লেন্সে ক্লাব হীরাপুরে একটি বেসরকারি ক্লিনিকের সাথে যোগাযোগ করেন, যেখানে মহিলার সমস্ত পরীক্ষা করা হয়। তবে শনিবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। এদিকে ডাক্তার বলেন যে মহিলার একটি রোগ হয়েছিল আর হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকের কারণে তাকে বাঁচানো যায়নি। এতে কোনো ধরনের গাফিলতির মামলা নেই। তবে পরিবারটি বলেছে যে এই লকডাউনে অর্থ ও যানবাহনের টানাপোড়েনের কারণে তাদের পুত্রবধূ মারা গেছেন। और हिल कॉलोनी धनबाद है ना, और ये भर्ती हुई थी पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज में 21/1 को, हो गया ना। वहाँ पे कोरोना टेस्ट हुआ था, नॉन रिएक्टिव है, कोरोना नहीं है इसको। इसको था एक्लेम्सिया, एक बीमारी होता है जिसमें कि लोग क्या करता है, उसका पैर उड़ी सब फूलने लगता है, तो समझता है कि मोटी हो रही है, लेकिन एक्चुअली वो एक्लेम्सिया एक बीमारी है जिसके चलते इसका हार्ट फेलियर हो। बस यही है। तो हम दिखा रहे थे पीएमसीएच में 3-4 महीने से कोरोना के चक्कर में लोग नहीं ले जा सके, वहाँ पर नहीं दिखा सके, प्लस प्राइवेट भी नहीं दिखा सके। पैसा की वजह से लॉकडाउन में सब काम धंधा सब बंद था। पैसा बच्चा लोग मजदूरी करता था, कहाँ से पैसा है। तो हम लोग कल यहाँ मैडम के पास ले आए कि मैम देखिए ना इसका प्रेशर, हाथ पैर क्यों फूला है और माथा तक चक्कर दे। तो मैम बोली इसका प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो मैम बोली भर्ती करने के मैम अपना कितना पैसा लगेगा। तो हम लोग कल नहीं भर्ती किए, कल हम लोग मैम देख के दिए, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करा लिए। हम लोग आज पैसा से जुटा करके आज लेके आए सुबह की भर्ती कर देंगे। तो ये लाइन उसका पोजीशन आप खराब हो गया और सांस ही होने लगा, गैस लगाते लगाते उसका प्रेशर हाई हुआ, बस हार्ट हो गया, हार्ट फेल हो गया। कितना दिन से प्रेग्नेंट थी ये तो 8वां महीना इसका चल रहा है। अच्छा, तो घर में परेशानी हो रहा था ना? हाँ सर, कल ही परसों से उसका ज़्यादा तबीयत खराब होता, हम लोग लेके यहाँ पर आए। तो मैम से पूछे तो मैम बोला कहाँ दिखाए, मतलब पीएमसीएच में दिखाए मैम। अभी वहाँ कोरोना के चक्कर में हम लोग डर से नहीं ले जा रहे थे, गाड़ी वगैरह भी नहीं चल रहा था, यहाँ नज़दीक था, तो रिक्शा से हम लोग कल ले आए। और कल आए तो मैम बोली भर्ती करो, तो कल पैसा नहीं था, कल भर्ती नहीं किए। कल अल्ट्रासाउंड कराए, खून वगैरह जाँच कराएँ, और आज पैसा लेकर के आए सर सुबह सुबह भर्ती करने। बस दवा ववा लाते लाते सब करते करते बस ऐसा। আজ হলদিপুকুর সাপ্তাহিক বাজারের কারণে চতুর্থ লকডাউন সত্ত্বেও ফুটপাতের দোকানগুলি ধীরে ধীরে খুলতেই তা দেখে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। অঞ্চল অধিকারী বালেশ্বর রাম দ্বারা ফুটপাতের সমস্ত দোকানগুলি বন্ধ করানো হয়, একই সাথে স্থায়ী দোকানগুলি খোলার আদেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি খোলা জায়গায় মুখোশ বিক্রি করাও নিষিদ্ধ করা হয়। क्योंकि यहाँ शनिवार को बाजार लगता था, इसीलिए लोग समझना कि बाजार लगाना नहीं है। जैसे मंदिर मस्जिद बंद है उसी तरह बाजार भी बंद है। अब दुकान लगाना है तो बैलेंस वे में कि घेरे हुए दुकान रहेगा, सीमित लोग आएंगे, मास्क लगा के आएंगे, और बाहर सामान नहीं रखेंगे। जैसे कि बाहर सामान रखने से हो सकता है कि उसमें सामान नहीं।
রাজনগর থানার আওতাধীন চাপড়াঘাটে জেলা এসপি মোহাম্মদ আরশি নিয়মিত অবৈধ খনন ও বালু পরিবহনের তথ্য পাচ্ছিলেন। এসপি দ্বারা এসডিও সরাইকেলা খারসোয়া ডাক্তার বাসরাত কাইমের নেতৃত্বে এসডিপিও রাকেশ রঞ্জন অঞ্চল অধিকারী এবং খনন বিভাগের আধিকারিকদের একটি সংযুক্ত টিম গঠন করে ছাপামারি অভিযান চালানো হয়। এরপরে ঘটনাস্থলে অবৈধ খনন কার্য চালিত প্রশাসন দ্বারা 3টি ট্রাক্টর বাজেয়াপ্ত করা হয়। পাশাপাশি পুলিশ ও খনন বিভাগ কর্তৃক আশেপাশে আরও অনেক অবৈধ ঘাটেও যৌথ অভিযান চালানো হচ্ছে। आज जो है डोहडिया पंचायत के चापड़ गांव में अवैध रूप से बालू का उठाव किया जा रहा था, तो एसडीओ सर के निर्देशानुसार वहां हम लोग छापामारी किए, जिसमें 3 ट्रैक्टर जो है पकड़ा गया अवैध रूप से। बालू भी पकड़ा गया क्या? हाँ, एक ट्रैक्टर में था बालू और कोई लोग, और बाकी चालक जो है फरार हो गए थे। किनके आदेश पे सर गुप्त सूचना मिली थी? एसडीओ सर के निर्देशानुसार किया गया। अब इन पे क्या कार्रवाई होगी मैडम? प्राथमिकी दर्ज किया गया। মহেশ্বরী যুব সংগঠন দ্বারা আজ যুগসলাইতে একটি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে 150 ইউনিট রক্তদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এই নিয়ে মোট 6 বার এই সংগঠন দ্বারা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। आज महेश नवमी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने महेश्वरी मंडल जमशेदपुर शाखा से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। इसमें हम लोग का लक्ष्य है कि 150 रक्तदाता आए और इसमें योगदान दें। कोशिश कर रहे हैं, सबको हम लोग अपने माध्यम से बुला रहे हैं। कुछ आ भी रहे हैं और कुछ को डर भी है, लेकिन ये बात अच्छी है कि अभी तक हम लोग ने 60 लोगों का, अभी 2 बज रहा है, 60 लोगों का अभी तक हमने डोनेशन दे चुका है। SGIHM Institute of Hotel Management, registered by Government of India, क्रैश कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management, 3rd floor, DH Trade Center, नियर राम मंदिर, ऑपोजिट बंधन बैंक, बिष्टपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management।